سب سے پہلے خبر دیں گے آپ کو اسلام آباد سے، جہاں قائد اعظم یونیورسٹی میں 2 طلبہ گروپوں میں تصادم کی اطلاعات ہیں۔ اس بارے میں مزید جانیں گے جیو نیوز کے نمائندے ایاز اکبر یوسف زئی سے۔ ایاز کہیے گا کیا وجہ بنی اور اس وقت صورتحال کیا ہے؟ کافی دیر ہوگی، تقریباً 2 سے 3 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ قائد اعظم یونیورسٹی میں 2 طلبہ تنظیموں کے درمیان لڑائی شروع ہوئی۔ شروع میں پتھراؤ ہوا، ایک دوسرے کو انہوں نے مارا، اس کے بعد دیگر طلبہ کو بلا لیا گیا۔ ابھی ہمارے ذرائع نے ہمیں بتایا کہ 2 طلبہ تنظیمیں ہیں، جس میں ایک بلوچی اور ایک سندھی گروپ جو ہے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ وجہ تنازع ابھی تک سامنے نہیں آیا، لیکن کافی دیر سے یہ لڑائی جاری ہے اور شروع میں انہوں نے ایک دوسرے کو پتھر مارے، ڈنڈے مارے۔ اس کے بعد مزید طلبہ کی تعداد بڑھتی گئی اور طلبہ جو ہے اپنے حامی طلبہ کو دیگر یونیورسٹی سے بھی بلا رہے ہیں اور ابھی طلبہ کی تعداد بہت حد تک جو ہے بڑھ چکی ہے۔ اس کے علاوہ یہ آپ کو بتاتے جائیں کہ حالات اس وقت کنٹرول سے باہر ہو چکے ہیں۔ اسلام آباد پولیس تھانہ سیکریٹریٹ کی نفری نے شروع میں کوشش کی کہ اس لڑائی کو کسی طریقے سے ختم کرایا جائے، لیکن یہ لڑائی جو ہے اپنی شدت میں مطلب ایاز ابھی تک صورتحال کنٹرول میں نہیں ہے؟ اب سر یہاں یونیورسٹی میں کبھی بھی کوئی وجہ صورتحال جو وجہ سامنے ایک دم نہیں آتی، تو وجہ یہی ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر یہ کوئی نہ کوئی بات بنا دیتے ہیں یا کسی قسم کی کسی بھی یونیورسٹی میں کسی ایکٹیویٹی کے اوپر تنازع ہوتا ہے، لیکن یہ اب اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ یہاں پر رینجرز کو طلب کر لیا گیا، رینجرز کو یہاں پر طلب کر لیا گیا۔ ایاز اکبر یوسف زئی، اس معاملے سے متعلق ہم مسلسل آپ سے جانتے رہیں گے۔ ابھی اہم خبر آپ کو دیں، آئی ایس پی آر کا بتانا ہے کہ کوئٹہ کے نواحی علاقے گاہی خان چوک میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کیا گیا۔ اسلحہ اور گولہ بارود زیر زمین چھپایا گیا تھا اور قبضے میں لیے گئے اسلحے میں 503 دستی بم شامل ہیں، 5 دیسی ساختہ آئی ڈیز اور 1 RPG-7 برآمد کی گئی ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 2 رائفلز اور 22 عدد RPG-7 گولے اور 19 فیوز بھی برآمد کیے گئے ہیں۔ مختلف ساخت کے ہزاروں راؤنڈز اور دیگر تخریبی مواد بھی برآمد کیا گیا ہے۔ دہشت گرد کوئٹہ میں تخریب کاری کی بڑی کارروائی کرنا چاہتے تھے۔ آئی ایس پی آر نے بتایا ہے کہ ایف سی کی بروقت کارروائی نے شہر کو بڑی تباہی سے بچا لیا۔ مشیر خارجہ سرتاج عزیز کا کہنا ہے کہ کلبھوشن کیس میں بھارت کی فتح کا تاثر غلط اور قبل از وقت ہے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کے دوران مشیر خارجہ نے کہا کہ عالمی عدالت نے محض امتناع کا عبوری حکم دیا ہے۔ میرٹ اور دائرہ اختیار پر فیصلہ آنا جس پر پاکستان کا کیس مضبوط ہے، یہ گفتگو کی گئی سرتاج عزیز کی جانب سے۔ ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ اگر بینچ میں پاکستان کا ایڈ ہاک جج ہوتا تو بھی یہی فیصلہ آتا۔ سجن جندال کا دورہ نجی تھا، کلبھوشن کیس سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ انڈیا کا جو موقف ہے کہ وہ انڈیا جیت گیا اور پاکستان کو ڈیفیٹ ہوئی، یہ پیش از وقت بھی ہے اور انیکوریٹ بھی ہے، کیونکہ یہ صرف پروویژنل آرڈر ہے۔ انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ جی ہم اس کیس کو سنیں گے اور اس دوران میں آپ ایکسیکیوٹ نہ کریں، ڈیتھ سینٹنس کو کیری نہ کریں۔ کوئی ڈاک یا ہوتا تب بھی فیصلہ یہی ہونا تھا، کیونکہ اس میں صرف یہی کہا کہ ہم اس کو ہیئرنگ کریں گے اور کیا کہا اور اس دوران میں آپ ایکسیکیوٹ نہ کریں، تو کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ اس سے بہت زیادہ فرق پڑا۔ کاؤنسلر ایکسیس کے بارے میں بھی انہوں نے کوئی آرڈر نہیں دیا، صرف یہ کہا کہ ہم اس ایشو پہ بات سن سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمیں کاؤنسلر ایکسیس تبھی دیں گے جو 23 جنوری کو ہم نے خط لکھا تھا انڈیا کو اور ان کی انفارمیشن مانگی تھی، تو اس حوالے سے جب ہم پھر رسپونڈ کریں گے۔ چونکہ اس کا جواب نہیں آیا تو ہم نے ابھی تک کاؤنسلر ایکسیس نہیں دی۔ جو بنیادی بات ہے وہ یہی ہے کہ جادیو جو ہے وہ صرف آرڈنری انڈین نہیں ہے، بلکہ ایک نیول آفیسر ہے جس نے فیک پاسپورٹ استعمال کیا۔ اگلے سٹیجز ہیں ایک جورسڈکشن کا اور ایک میرٹ کا، دونوں میں ہماری پوزیشن کافی سٹرانگ ہے۔ انڈیا کے ایک اپنا جج ہے کجو، اس نے کہا ہے کہ انڈیا نے یہ غلطی کی ہے ICJ جا کے، کیونکہ اس سے راستہ کھل سکتا ہے کشمیر کو وہاں لے جانے کا۔ یہ انڈیا کا ایک جج ہے کرجو، جسٹس مرکنڈے کرجو، اس نے یہ بیان دیا۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ جندل کیس میں چونکہ وہ ان کی ایک بالکل پرائیویٹ وزٹ تھی اور ان کے پرائیویٹ دوست تھے، تو فارن آفس کے پاس نوٹ، اگر کوئی ایسی بات ہوتی جو ہمارے ریلیونٹ ہوتی ہے تو پھر بتاتے، لیکن وہ کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ کلبھوشن جادیو کے معاملے پر بھارت نے عالمی عدالت جا کر بڑی غلطی کی ہے، یہ کہنا ہے بھارتی سپریم کورٹ کے سابق جج مارکنڈے کاٹجو کا۔ جسٹس ریٹائرڈ کاٹجو نے کہا کہ بھارت نے کشمیر کے معاملے پر پاکستان کو عالمی عدالت جانے کا موقع فراہم کر دیا ہے۔ انہوں نے بھارتی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بھارت نے عالمی عدالت جا کر پینڈوراز باکس کھول دیا ہے۔
और अब बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट बार में वकला कन्वेंशन में हुई हंगामा आराई की। नून लीग, पीटीआई और जमात इस्लामी के हामी वकला आज झगड़ पड़े, शीशे तोड़े और कुर्सियां उलट दी। स्टेज पर कब्जे की कोशिश में धींगा मुश्ती हुई। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर रशीद रिजवी सूरत हाल पर बरहम दिखाई दिए। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर की सरबराही में एक्शन कमेटी तश्कील दे दी गई। वजीर आजम से 27 मई तक इस्तीफा देकर JIT के सामने पेश होने का मुतालबा किया गया। वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ 21 से 23 मई तक सऊदी अरब का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि वज़ीर आज़म रियाद में पहली सहफ़रीक़ी अमरीका अरब इस्लामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म अपने खिताब में इस्लाम के अमन, तहम्मुल और इत्तेहाद के पैगाम पर गुफ्तगू करेंगे और दहशत गर्दी को शिकस्त देने में पाकिस्तान की कामयाबियाँ उजागर करेंगे। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक का जिक्र करते हैं, जिनका कहना है कि तब्दीली के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तब्दीली इल्ज़ाम तराशी, झूठ और लंबी लंबी छोड़ने से नहीं आती। लाहौर में खिताब करते हुए साद रफ़ीक ने कहा कि कुछ टीवी एंकर्स नहीं मदारी हैं, जिन्हें मायूसी फैलाने के माहाना 50 लाख रुपए मिलते हैं। ये पैसा कहाँ से आता है? कोई टीवी चैनल जाली डिग्रियों का धंधा कर रहा है तो किसी का मालिक सोना स्मगल करता रहा है। घी, सोना और जाली डिग्रियां बेचने वाले हमें अखलाकियात का दर्स दे रहे हैं। मेहनत करनी पड़ती है, रातों को जागना पड़ता है, अपना काम छोड़ना पड़ता है, फिर जाके मुल्क में तब्दीली आती है। तब्दीली इल्जामात लगा के नहीं आती, तब्दीली किसी की बेइज्जती करके नहीं आती, ऊंचा ऊंचा झूठ बोल के, जलसों में लंबी लंबी छोड़ के। बाज टीवी एंकर जो एंकर नहीं बल्कि क्या है, मदारी है, मदारी सर्कस करते हैं टीवी पे बैठ के। 50-50 लाख रुपए का पैकेज लेते हैं, 50 लाख रुपए महीना मुल्क में मायूसी फैलाने के लिए उन्हें मिलता है। किधर से आता है? बाद ऐसे चैनल हैं जो जाली डिग्रियों का धंधा करते हैं जिसके मालिक, बाद ऐसे चैनल हैं जिनके मालिक सोने की स्मगलिंग करते रहे हैं। कोई घी बेच रहा है, कोई सोना बेच रहा है, कोई जाली डिग्री बेच रहा है, टीवी चैनल का मालिक बन गया, लोगों को खिलाफियात का दर्ज दे रहा है और वो कहते हैं सियासतदानों से बुरा है ही कोई नहीं। अच्छा, हम इतने बुरे हैं तो लोग हर बार हमें वोट क्यों देते हैं? इसलिए कि लोग सोच समझ के वोट देते हैं। लेकिन 4 साल हम निकाल गए तमाम तर ठिकियों के बावजूद और तमाम तर साजिशों के बावजूद। बड़ी ठिकियां देते हैं साल हो जाते, बड़े अड़ंगे देते हैं, बड़ी गाल खाती है, बहुत साजिशें देखी हैं। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक के इस बयान पर बात करते हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब से। हामिद मीर साहब, आप क्या कहेंगे ख्वाजा साद रफ़ीक के इस बयान पर? राम है और इस मसले में मैंने उनके साथ खुद भी बात की है। वो पहली दफ़ा उन्होंने ये बात नहीं की, तीसरी चौथी दफ़ा उन्होंने बात की है कि जी कुछ टीवी एंकर्स जो हैं वो 50 लाख रुपया तनख्वाह लेते हैं और मायूसी फैलाते हैं, तो उनको चाहिए कि वो उनके नाम लें, लेकिन वो नाम नहीं लेते। साद रफ़ीक साहब का बज़ाहिर तो कहना यही है कि जनाब मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मैं आप लोगों के बारे में बात करूं, लेकिन जब वो किसी का नाम नहीं लेंगे और एक जनरल स्टेटमेंट दे देंगे कि 50-50 लाख रुपया तनख्वाह है, तो कम अज कम मेरी तो 50 लाख का आधा भी नहीं है। वो तमाम टीवी एंकर्स जो जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, जिन्होंने हमेशा जमहूरियत की लड़ाई लड़ी है, जो आज़ादी सहाफ़त के लिए, इंसानी हुकूक के लिए उन्होंने बड़ी मुश्किलात का सामना किया है, तो वो उन सब को भी मशकूक बना देते हैं। तो वो अगर गधे और घोड़े को बराबर करेंगे तो फिर जाहिर बात है फिर हमें भी सवाल उठाना पड़ेगा। तो मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो नाम नहीं लेते और नाम ना लेके वो तमाम टीवी एंकर्स को मशकूक बनाते हैं। मैं तो ये गुजारिश करूंगा कि वो देख लें, इनकम टैक्स रिटर्न सबके देख लें, इनकम टैक्स रिटर्न से उनको पता चलेगा कि किसकी कितनी तनख्वाह है। और अगर वो नाम नहीं लेते और शायद इसलिए कि फिर उनको लीगल नोटिस आएंगे, तो फिर मेरा ख्याल है कि उनको सोचना चाहिए कि आधा सच बोलना जो है वो अच्छी बात है या बुरी बात है। बहुत शुक्रिया आपका हामिद मीर साहब। अब बात करेंगे सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के अहम तरीन थाने रंग महल की खातून SHO की, जिन्होंने कहा है कि वो अपने थाने से माहाना कल्चर का खात्मा कर देंगी। कोई अहलकार मंथली लेगा ना कोई साइल मंथली देने की जुर्रत करेगा, हर काम मैरिज पर होगा। थाना कल्चर में तब्दीली नजर आएगी। अदनान मलिक की रिपोर्ट। में होता होगा, मंथलियाँ ली जाती होंगी, उन्हें छोड़ा जाता होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब बहुत चेंज आ गई है। थाना कल्चर में तब्दीली के लिए ही मुझे तैनात किया गया है। थाना रंग महल की SHO गजाला महमूद
मास्टर ऑफ हिस्ट्री और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहान में कामयाबी के बाद 1998 में ASI सिलेक्ट हुई थी। UNO के मिशन पर बैरून मुल्क इंस्ट्रक्टर भी रहीं। बहसियत SHO ये उनकी पहली पोस्टिंग है और वो भी उस इलाके में जहां मंशियात, जराइम और तजावजात की शिकायत ज़्यादा हैं। क्रिमिनल्स मेरे चैलेंजेस हैं और यही जो मनशियात का, गुटके का, तजावजात का, वॉल सिटी का जो बिज़नेस करते हैं, कारोबार करते हैं, धंधा करते हैं, तो उन्हीं के ख़िलाफ़ मेरी जंग है। SHO गजाला का कहना है कि फैमिली और ड्यूटी को बेहतर तरीके से मैनेज करना उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है। मेके और ससुराल में भरपूर पजीराई मिली। अफसरान ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे बखूबी निभाएंगी। नाके पे भी खड़ा होना होता है, उसे हमने गश्त भी करना होता है, वो डे हो या नाइट हो। इसीलिए ये जॉब मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं, और हमारा मोराल मेरा बहुत अप है। गजाला महमूद का कहना है कि इलाके की मुख्तलिफ सियासी और कारोबारी शख्सियात को मेरिट पर काम की यकीन दहानी कराई है। कैमरामैन मोहम्मद सादिक के साथ अदनान मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान का कहना है कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, वो न्यूट्रल आदमी है। बख्तावर भुट्टो की ख्वाहिश पर बॉक्सिंग के गुर सिखाए। मरियम नवाज चाहेंगी तो उन्हें भी बॉक्सिंग के गुर सिखा देंगे। घरेलू मामलात बिल्कुल ठीक हैं। कुछ रोज़ पहले वालदा से मुलाकात भी हुई। देखिए नवीन अली की रिपोर्ट। पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान की लाहौर में हजरत अली हजवेरी अल मारूफ हजरत दाता गंज बख्श के दरबार पर हाजिरी और फातिह ख्वानी। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि बख्तावर भुट्टो उनकी अहलिया की अच्छी दोस्त हैं। वो बख्तावर को बॉक्सिंग के गुर सिखा रहे हैं। मरियम नवाज को बॉक्सिंग सिखाने के सवाल पर आमिर खान ने कहा कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। मरियम चाहेंगी तो उन्हें भी बॉक्सिंग सिखा देंगे। मैं रियली इन्वॉल्व नहीं हूँ पार्टी में, मैं बस न्यूट्रल बंदा हूँ। So I'm okay with everybody. और मरियम को बॉक्सिंग सिखाएंगे? हाँ, नो प्रॉब्लम, हाँ वो भी हो सकता है। आमिर खान ने इंटरनेशनल रेसलिंग इवेंट को पाकिस्तान के लिए अच्छा शगुन करार दिया। उनका कहना था कि वो यतीम बच्चों के लिए आमिर खान ट्रस्ट बनाना चाहते हैं। फैमिली उनके साथ है, कोई तनाज़ा नहीं। ठीक हो गया मामला सब कुछ। फैमिली मेरे साथ अच्छे, मॉम डैड। मैं अभी गया था मॉम के साथ मिलने के लिए, वो इस्लामाबाद में, और सो सब कुछ ठीक है। आमिर खान ने दाता दरबार पर गरीबों में चावल भी तकसीम किए। उनका कहना था कि वो जब भी पाकिस्तान आते हैं दाता दरबार जरूर सलाम करते हैं। यहाँ आना उन्हें अच्छा लगता है। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ नवीन अली, जियो न्यूज़, लाहौर। अपडेट देंगे आपको इस्लामाबाद की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से, जहां 2 तलबा ग्रुपों में तसादुम हुआ और अब इत्तलात ये है कि पथराव और झगड़े के बायस 30 अफराद जख्मी हुए हैं। पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग की गई है और इत्तलात हैं कि बाज अफराद फायरिंग के तबादले में जख्मी हुए हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफजई ने हमें ज्वाइन किया। अयाज, कहिएगा क्या सूरत हाल संगीन हो गई है? फायरिंग का तबादला भी हो रहा है? जी ज़ुहैब, अभी सूरत हाल इस वक्त तो थोड़ी सी बेहतर लग रही है, लेकिन कुछ देर कबल यूं लग रहा था कि कादियान यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है इस वक्त मैदान जंग का समा था। काफी ज्यादा जो है वो हवाई फायरिंग भी हो रही थी, हमें फायरिंग की आवाजें भी आई। उसके बाद पुलिस की बारी नफरी जब कादियान यूनिवर्सिटी की कैंपस में दाखिल होने लगी तो इतनी शदीद फायरिंग थी कि पुलिस ने उस फायरिंग की वजह से अंदर जो है वो दाखिल ना हो पाई। फायरिंग दोनों तलबा तंजीमें आपस में एक दूसरे पे कर रही थी और जिससे तकरीबन अभी तक हमारे इत्तलात के मुताबिक जो जराए बताया कि 30 से 35 तलबा जो है वो शदीद जख्मी हो चुके हैं, जिसमें किसी के सर फट गए हैं, किसी के पाँव जो है वो जख्मी है। और ये भी इत्तलात है जो है कि कुछ तलबा को गोलियां लगने से वो शदीद जख्मी हुए। अभी तक कोई हमारे पास किसी की डेथ की कोई इत्तलात तो नहीं, लेकिन हमारे पुलिस जराए ने हमें ये बात बताई कि कुछ तलबा को गोलियां लगी हैं, उनकी हालत भी तशवीशनाक है। अयाज, आप बता रहे हैं कि इतनी ज्यादा फायरिंग हो रही थी कि पुलिस नफरी के लिए अंदर यूनिवर्सिटी में दाखिल होना मुश्किल हो गया। अब क्या कार्रवाई की जा रही है, ये भी अपडेट कीजिएगा। अभी देखिए, पुलिस अंदर दाखिल हो चुकी है और जो जख्मी तलबा है उनको जो है वो रेस्क्यू किया जा रहा है और उनको एम्बुलेंसेस में डालकर पोली क्लिनिक और पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। और जो तलबा फायरिंग कर रहे थे उसमें से 2 से 3 तलबा को वेपन के साथ जो है इस्लामाबाद पुलिस सेक्रेटरीट पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार कर लिया है और उनको इस वक्त मुंतकिल कर दिया गया यहाँ से। लेकिन यहाँ पर इतने शदीद तलबा जख्मी हैं, किसी के सर फटे हुए हैं, किसी के कपड़े फटे हुए हैं, किसी को पत्थर लगे हैं, किसी को डंडे लगे हैं और किसी को फायरिंग भी जो बुलेट्स भी लगे हैं। लिहाजा यहाँ पर अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक 30 से 35 जो तलबा थे वो जख्मी हुए। अयाज, क्या अभी भी फायरिंग का सिलसिला जारी है? नहीं जी, अभी इस वक्त थम चुका है और पुलिस कामयाब हो चुकी है अंदर दाखिल होने में। जो काफी देर पहले ऐसा लग रहा था कि शायद पुलिस के लिए अंदर जाना नामुमकिन होगा, लेकिन अब फायरिंग भी ये कहा जा सकता है अयाज की सूरत हाल को कंट्रोल कर लिया गया है? जी बिल्कुल, इस वक्त अब ये कह सकती है कि कुछ देर कबल तक जो है हालात जो है वो काफी कंट्रोल में है, फायरिंग नहीं हो रही। और अभी वो जख्मी तलबा है उनको रेस्क्यू करके उनको इब्तिदाई तिबी इमदाद पुलिस सरकार खुद भी दे रहे हैं और जो ज्यादा जख्मी है
उनको एम्बुलेंसेस में डालकर पॉली क्लिनिक और फिर अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। अच्छा अयाज, ये भी कहिएगा 24 अप्रैल को भी 2 ग्रुप्स में तसादुम हुआ था, उसी का ये तसलसल है? देखिए इस वक्त जो सिचुएशन है कुछ कहना कबल इस वक्त होगा कि वजह तनाज़ा क्या है, लड़ाई क्या है, लेकिन माजी में भी यहाँ पर काजिल यूनिवर्सिटी में कौमियत की बुनियाद पर यहाँ पर लड़ाइयाँ होती रही हैं और ये नहीं पता लगा कि इस लड़ाई की वजह क्या है, लेकिन ये जरूर पता लगा है बलोची और सिंधी जो तलबा है उनके ग्रुप का आपस में तसादम हुआ है और क्योंकि ये एकदम हुआ और उसके बाद इसकी नोयत इतनी ज्यादा होगी कि अच्छा अभी तक गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं? जी गिरफ्तारियां की गई हैं, कुछ जो तलबा फायरिंग कर रहे थे उन्हें पकड़ा गया जो है वो की गई हैं और जो जख्मी तलबा है उनको रेस्क्यू करके जो है ना वो उनको ले जाया जा रहा है अस्पताल में। तो अभी जो 2 से 3 तलबा हमने देखे हैं जिनको पुलिस ने यहाँ गिरफ्तार किया और पुलिस अधिकारी ने बताया कि ये वो तलबा थे जो फायरिंग कर रहे थे, वो फायरिंग में इन्वॉल्व थे। पुलिस ने फायरिंग करने वाले मुतादिद तलबा को असलहे समेत गिरफ्तार किया है। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से अयाज आप हमारे साथ ही रहेगा। नाज़रीन आपको अपडेट करें, इस्लामाबाद की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में 2 तलबा ग्रुपों में तसादुम हुआ और सूरत हाल ने बहुत ज़्यादा संगीनी इख्तियार की। जब पुलिस नफरी यूनिवर्सिटी में दाखिल होने की कोशिश कर रही थी उसी दौरान अंदर एक ग्रुप की जानिब से इनफैक्ट दोनों ग्रुप्स की जानिब से एक दूसरे पर फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ। फायरिंग इतनी ज़्यादा थी कि पुलिस नफरी बहुत मुश्किल से यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई, लेकिन इस वक्त कहा जा रहा है कि कुछ सूरत हाल को कंट्रोल कर लिया गया है और कुछ गिरफ्तारियां भी अमल में आई हैं, लेकिन कुछ तलबा इस तबादले में फायरिंग के तबादले में जख्मी भी हुए हैं।